ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قیصر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ کا استعفیٰ آیا اور گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کی 3 کمیٹی سے آپ نے ریزائن کیا. آپ یہ جو ایشو ریز کر رہے ہیں, آپ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور ہم مزید قرض لے کر پھر ایکسپینس کر رہے ہیں اور ہم اپنے اندر اصلاحات نہیں لا رہے ہیں, وہ ریونیو ایکسپینس کے گیپ کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ڈیفالٹ کی بھی بات کی. تو بتائیے کیا ایسے عوامل تھے جن کو لے کر آپ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو گئے کہ آپ نے استعفے کا سوچ لیا؟ پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں, 3 کمیٹی سے ریزائن نہیں کیا, 1 کمیٹی سے. جی 3 کمیٹی کا قصہ یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی, نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی, وہ پھر سپرسیڈ کر گئی, دوسری کمیٹی بنائی کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز, وہ سپرسیڈ ہو گئی, تیسری کمیٹی بنائی اس وقت موجودہ کمیٹی ہے, ہائی پاورڈ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ. تو یہ اس ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے اس سے میں نے استعفیٰ دیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کچھ میری باتیں سنا دی ہے. پہلی جو کمیٹی تھی اس کے جب رزلٹ کچھ پیش کیے تو ویسے ہی روایتی تھے سارے, یہ لگژری ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے, لگژری گاڑی نہیں خریدیں گے وغیرہ وغیرہ. پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ کوئی ٹھوس چیز لے آؤ, یہ بتاؤ بن کیا کر سکتے ہیں ہم. تو پھر یہ تیسری کمیٹی جو ہے انہوں نے کافی ہفتے لگائے, 5 ڈویژنز اور اس ڈویژنز کے اندر جو ادارے ہیں تو 70 آرگنائزیشنز کو دیکھا. اس میں سے جو 17 ایسے ہیں جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے, وہ ویسے ہی پرائیویٹائزیشن کے لیے ہے. تو 70 میں سے 17 نکالے تو 53 بچتے ہیں. 53 میں سے اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 52 کو ریٹین کریں گے, 1 بند کریں گے. میرے اس پہ مستقل اعتراضات تھے. جو ادارے وہ کہتے تھے کہ یہ ضروری ہے, میں کہتا تھا یہ بند کریں اس کو, یہ انہوں نے آج تک کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. جب سے یہ بنے ہیں صرف تنخواہ کھا رہے ہیں اور اخراجات لے رہے ہیں. لیکن وہ میرے اعتراضات جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے پوائنٹس نوٹ کر دیے گئے ہیں. اور جب پریزنٹیشن ہوئی پرائم منسٹر کو تو وہ جو پہلے بنا کے لائے تھے وہی انہوں نے پیش کر دیا. تو پھر میرا اس کمیٹی میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا تھا اگر میں نے صرف بیٹھ کے ان کی باتیں سننی ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیے حکومت سرکاری اداروں میں اصلاحات کرنے میں کیوں ناکام ہو گئی ہے؟ وہ چینجز جو وہ پرومس کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کمیٹی پہلے بنی, پھر اس میں وہ چینجز امپلیفیکیشن نظر نہیں آ رہی, امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. بہت کی آپ نے بات کی ہے, آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اسلام آباد جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی اٹس another پارٹ آف دا کنٹری. تو وہ امپلیکیشنز کب نظر آئیں گی اور کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جو چینجز آپ لا رہے تھے, آپ سجیسٹ کر رہے تھے, ان میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے. جب میں آپ سے قرضہ لوں اور واپس نہ کر سکوں, یہ ڈیفینیشن ہے بینکرپسی کی. اب تو ہم قرضہ لے رہے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے. اگر قرضے ملنے بند ہو گئے تو ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم بینکرپٹ ہیں, اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. یہ نوبت اس لیے نہیں آئی ہے کہ تھوڑے تھوڑے قرضے ہمیں ملتے رہتے ہیں, لیکن اب وہ بھی دروازہ بند ہونے لگا ہے کیونکہ IMF پچھلے میٹنگ میں بھی پاکستان کو ایجنڈا پہ نہیں رکھا, اس دفعہ بھی نہیں رکھا. IMF کہہ رہا ہے کہ شرائط کچھ ہے. چین اور سعودی عرب سے ہمیشہ جا کے چیک لے کے آ جاتے تھے, وہ بھی اب تیار نہیں ہے ہمیں دینے کو, چونکہ یہ ایک ایسا ڈبہ ہے جس کا باٹم نہیں ہے, جتنا ڈالو نکل جاتا ہے. اثاثے ہم بیچ نہیں پا رہے ہیں. پہلے 93 سے ہم نے شروع کیا کہ اثاثے بیچ کے اپنا خسارہ پورا کر لیں تھوڑا بہت, وہ بھی اب نہیں کر پا رہے ہیں. کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. PIA ہم کب سے بیچنا چاہ رہے ہیں, کوئی بٹ نہیں کر رہا PIA کے لیے. تو یہ معاملہ جو اس وقت آپ کے جو چل رہا ہے نا, ملک ابھی بھی چل رہا ہے, تنخواہیں بھی دی جا رہی ہے, باقی اخراجات بھی ہو رہے ہیں. یہ قرضہ لے رہے نجی بینکوں سے, جی, اور نجی بینکوں کا قرضہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے. اور آنے والے 2-3 سال میں جو اس وقت ہم قرضوں کے بوجھ کے تلے
दबे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका 2-3 इंटरेस्ट ही हम साल पे के करते बाद जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करने की बात बहुत दूर की, और यही चल रहा है। अच्छा कैसा भी ये कहिएगा, आपने एक और इशू बड़ा रेस किया, यूटिलिटी स्टोर्स के मामले पर बड़ा एहतजाज भी हो रहा है, और आपने भी ये कहा कि अगर आपने कोई इदारे बंद करने हैं तो पहले देखें, रिसर्च करने के बाद ग्रेड 1 से लेके और 17 यानी 14 तक के मुलाजमीन को आप यानी उन्हीं के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, वैसे ही नौकरियां नहीं हैं। तो आप इन सब मामलात में जो आप बताना चाह रहे हैं उनको क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि दूसरी तरफ इदारा शुमारियात ने कल जारी किया आदाद शुमार, उससे कहा है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई, शहरों में 9% से भी कम है और देहातों में तो 6% है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी में जा रही है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और ब्लूमबर्ग कुछ और रिपोर्ट देती है हमें। वो हमेशा अपना अच्छा चेहरा दिखाना चाहते हैं और वही आदाद और शुमार बताते हैं जो उनके ख्याल में अच्छे हैं, लेकिन साथ जो दूसरे आदाद और शुमार हैं जो अच्छे नहीं हैं उसका वो जिक्र नहीं करते। ये पुराना तरीका है और हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं इस गेम को खेलते हुए, लेकिन अब गेम के वक्त ख़त्म हो गया क्योंकि मुल्क नहीं चल सकता, कर्जों पे नहीं चल सकता। अच्छा सर, और हम ये बताइएगा कि एक यूके बेस्ड इकोनॉमिस्ट से एक प्लान बनाया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पता नहीं कितने लोग बाहर से बुला के प्लान बनाया, बाहर से बुला के वजीर आजम बना देते हैं, बाहर से बुला के फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, बाहर से बुला के स्टेट बैंक के गवर्नर लगा देते हैं, बाहर से बुला के, लेकिन अब तक क्या हुआ है? जिस सारे दौर में हमारा ग्राफ नीचे ही जाता रहा है। बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में काफ़ी लोग हैं जिनको पता है इस मुल्क मईशत को ले आने के लिए क्या, और जो ये कमेटी हमारी बनी है जिसका मैं था मेंबर, ये पहला मौका नहीं है। हफीज़ पाशा के सरबराही में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट के अखराजात कम करने के। इशरत हुसैन की कमेटी एक बनी, उन्होंने बहुत तफसीली दी और मैंने दोनों रिपोर्ट्स देखी है, दोनों बहुत अच्छी रिपोर्ट है। हमारी ये कमेटी बंद करें और उनके सिफारिशात पे अमल कर लें तो हालात बहुत बेहतर हो जाए। जी अच्छा, एक और आपने सेहत से जुड़, आपने ये भी कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल से मुतालिक जो महकमे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और बड़ा एक अहम मामला है पॉपुलेशन कंट्रोल का जिसको नहीं देखा जा रहा। फिर आपने एसएमईज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी आपने कहा कि, और नज़र भी आ रहा है फैसलाबाद में आप देखें 100 से ज़्यादा एसएमईज सिर्फ इस वजह से कि वो कंपैरेटिव प्राइसिंग उनकी नहीं हो सकती, बिजली के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पर तवज्जो, यानी हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कहती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये हमेशा बात होती है कि हम इस्लाहात ला रहे हैं, किसान को, हारी को, गरीब तबके को रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये बातें सामने आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट फिगर्स हैं ये जो नंबर्स कल आए हैं इदारे शुमारियात की तरफ से? जब तक मैं इस नंबर को देखूं ना, मैं नहीं कह सकता कि ये कैसे नंबर्स हैं, लेकिन जो एक बहस हुई थी कमेटी में, एक राय ये थी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस बैकबोन होता है मईशत का, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। मैंने कहा कि जी आपने टैक्स का निज़ाम और इंटरेस्ट रेट और बिजली की कीमत वगैरह से इंडस्ट्री को तो आपने बिल्कुल मफलूज कर दिया है। एक ब्यूरोक्रेटिक इदारा जिसका डीजी हो, डायरेक्टर्स हो, गाड़ियाँ हो, दफ्तर हो, वो आपके ख्याल में उससे सनत फरोग पाएगी? तो दूसरा, पॉपुलेशन के हवाले से भी यही बहस चली कि जी पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए वगैरह वगैरह। मैंने कहा जी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट का इदारा बना के पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा? ये दोनों इदारे, समेडा है और पॉपुलेशन के जो सारे इदारे हैं, ये पता नहीं 25, 30, 40 साल से मौजूद है, लेकिन ना तो सनतकारी में कोई हमें तरक्की नज़र आती है, ना आबादी कंट्रोल करने में कोई तरक्की नज़र आती है। तो ये इदारे सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और अपने अखराजात करते हैं और बस बोझ बने हुए। सर ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने बिजली रिलीफ करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया और फिर IMF ने कहा कि उसमें कैपेसिटी नहीं है कि ये रिलीफ दे सके। 45 अरब का ये रिलीफ, 45 अरब इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्या पंजाब हुकूमत फोरसाइट नहीं कर सकती, फोरसी नहीं कर सकती कि ये उनमें कैपेसिटी ही नहीं है, तो ये ऐसे ऐलान करते क्यों है? इनका
बिल्कुल एक फुकदान है सोच का। इनको पता होना चाहिए था कि आईएमएफ की तरफ से एतराज़ आएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, दानिस्ता किया। इन्होंने पहले ऐलान कर दिया अवाम से, वो समझा अवाम तालियां बजाएंगे। फिर अब आईएमएफ ने कहा मत करो तो नहीं किया। फिर अवाम के पास जाके कहेंगे देखें जी हम तो आपके हमदर्द है, आईएमएफ नहीं करने दें। ये आईएमएफ के कंधे पे बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन इनको पहले से पता था कि आईएमएफ नहीं करने देगा। उनको ये भी पता था कि 45 अरब रुपए है नहीं इनके पास देने को, लेकिन ये सियासत खेल रहे हैं। सियासत यानी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए ये काम। कैसे साहब ये कहिएगा, अब सब ये जानना चाहते हैं आपसे, अवाम की नज़रें इस पर लगी हुई है कि क्या आईएमएफ से मामलात आगे बढ़ेंगे, ये रोल ओवर होंगे सऊदी अरब से, चाइना से जो कर्जे हैं, मईशत किस तरफ जाएगी सर? सुनने में आ रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे उन्होंने कहा जी रोल ओवर कर दे 3 साल के लिए। चाइना में 3 साल के बाद क्या होगा, उनके पास जवाब नहीं था। सुना है ये। अब बात ये है कि सही है गलत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम भी पूछते हैं कि 3 साल के बाद क्या होगा, साल के बाद क्या होगा। 2 खसारे हैं, बजट का खसारा और बैनुल अक़वामी तिजारत का खसारा। हम 100 रुपया जमा करके 220-230 रुपया खर्च करते हैं। हम $100 के एक्सपोर्ट करके 210-220 डॉलर का इम्पोर्ट करते हैं। तो खसारा पिछले 25-30 साल से चल रहा है और हम कर्जों से पूरा कर रहे हैं। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। इनको ये खसारा ख़त्म करना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर कट करना पड़ेगा। सर कैसे खत्म हो सकता है ये खसारा? अपनी इंडस्ट्रियल रेवेन्यू को, ग्रोथ को बढ़ाएंगे? जी देखें ना, बात ये है कि आप जितना जितना बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं और वो बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री तो बंद हो रही है। इंडस्ट्री डेवलप होने के बजाय बंद हो रही है। जो इंडस्ट्री कम टैक्स देती थी बंद होने के बाद 0 टैक्स दे रही है। आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मिन्नतें कर रहे थे ताजिरों को कि हमारा अगर तरीका नहीं है तो आप कोई तरीका बताएं टैक्स देने का। मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरी नहीं जाहिर हो रही थी, ये रियासत की मजबूरी जाहिर हो रही थी। और आप कासिम साहब ये भी देखें कि वो अब तो वाज़ेह तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि अब आईएमएफ की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं तो हम ताजिर तबका कोई एक्सपेक्टेशन हमसे ना रखे, कोई रिलीफ हम नहीं दे सकते हैं। ये कहिएगा जो इंटरेस्ट रेट है, और इससे पहले तो बहुत ही 21% पर था, मईशत बिल्कुल ही यानी स्टॉल होकर रह गई थी एक जगह पर, 19% पर भी क्या समझते हैं आपके बोरिंग्स होंगी? क्या मईशत का पहिया चलेगा, डेवलपमेंट होगी? कैसे ग्रोथ कैसे हम हासिल करेंगे? ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है जी। इन्फ्लेशन अफराद ज़र की 2 वजह होती है, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाती है, कोई नुकसान में तो चीज़ बेचेगा नहीं, या अवाम के पास बहुत पैसे हैं, तलब ज़्यादा है, लोग मंडियों में जाके माल ख़रीद लेते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए कीमत बढ़ती है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से है। आपने बिजली, गैस, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो ये दवा है ये तो डिमांड साइड का है। अगर डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए है। तो मर्ज कुछ और है, दवा इन्होंने कुछ और उससे हुआ ये कि इंडस्ट्री बैठ गई। बिल्कुल सर, नेशनल एसेट्स आपने बात की, प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें, PIA इज़ आर मतलब एक हमारी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन है, उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा। स्टील मिल का देखें हाल, क्या कहते हैं वो, कहाँ डायरेक्शन जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए हमने 92 से जितनी भी प्राइवेटाइजेशन की है सिर्फ एक मकसद के लिए की है, पैसे न आ जाए कुछ ताकि हम खर्च कर सकें। इन्होंने उस चक्कर में पूरा इंडस्ट्रियल बेस तबाह कर दिया। 1992 में एक साल में तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हुई, 2-3 के अलावा सब 6 महीने में बंद हो गई और वहाँ पर हाउसिंग कॉलोनीज बन गई। तो आपने सनत का तो बिल्कुल बेस इरोड कर दिया, जिससे रोजगार भी चला गया और एक्सपोर्ट के अच्छा, बस एक जाते जाते सर थोड़ा सा वक्त आपसे, और
لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ مزید مہنگائی کے بوجھ تلے ابھی لوگوں کو دبنا ہے، کوئی ریلیف ملنا ہے یا نہیں ملنا، معیشت سنبھلے گی یا نہیں سنبھلے گی؟ آپ کا تجزیہ یعنی اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر کیا کہتا ہے؟ بدقسمتی سے صرف مہنگائی کا تلوار نہیں لٹک رہا ہے، بے روزگاری کا تلوار بھی لٹک رہا ہے. جب کارخانے اور کاروبار سب بند ہونے لگیں گے تو ابھی جتنی بے روزگاری ہوئی ہے، ہم ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتے ہیں جو 2-3 لاکھ روپیہ تنخواہ والے لوگ تھے، اب بے روزگار بیٹھے ہیں، گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں. یہ بھی ایک خطرہ منڈلا رہا ہے ہمارے سامنے. جی اور آپ دیکھیں جی جی 29 اگست ڈان میں 2 خبر اوپر نیچے تھی. ایک خاتون نے بہاولپور میں 2 بچوں کے سمیت ٹرین کے سامنے کود کے مارا. ایک فیملی لاہور میں 5 لوگوں کی فیملی ہے شادارہ ٹاؤن میں، انہوں نے زہر دے دیا سب کو، اپنے آپ خود بھی زہر کھا لیا انہوں نے. تو لوگوں کی، ملک کی معیشت تو ڈوبی رہی ہے، لوگوں کی معیشت بھی ڈوب رہی ہے. بالکل، اللہ خیر کرے گا اور ہماری امید یہی ہے کہ معیشت سنبھلے. قیصر بنگالی صاحب، ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.